Good afternoon, students. Today we are going to start our next topic of this chapter. Chapter number 2, diversity and discrimination. And today this is our lecture number 3. So let's start. Yes, students, so far we studied about the differences and prejudice. What are differences? So what are differences? Actually, we studied that people are different in terms of living, eating, speaking, clothing, and various other things. Differences are influenced by the geography and history of the place where we live. So here we discussed the question, diversity is not always celebrated. Why? Diversity is not always celebrated. Why? So, student, actually people don't feel safe and secure with people who don't look, talk, dress, or think like them. And people also form certain attitudes and opinion about others who are not like them. For example, villagers as ignorant and superstitious, while people in the cities as money-minded, lazy, and cunning. Then after that, we studied about the prejudice. So what is prejudice, students? So now you know that prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. So we can be prejudiced about many things, such as about people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Okay. After that, student, we studied about the creating stereotypes. So all of us are familiar with gender differences. So stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. So now then next topic we discussed about the stereotype. What is stereotype? So stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. So they fit large numbers of people into only one pattern or type. After that, we studied about the discrimination and inequality. So what is discrimination, students? You know that what is discrimination? Discrimination means treating a person unfairly, especially on the ground of race, age, and sex. And how does it happen? How does it happen? Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotype. And what is inequality? What is inequality? The unfair situation in society when some people have more opportunities, money, etc. than other people. Okay, for example, like people who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing, and shelters. So, who are treated as both discriminated and inequalities? Who are treated as both discriminated and unequally? So, tribal, some religious group, and even particular regions
are discriminated against for one or more of these reasons. Okay, students. So, student, today we will discuss how these groups, tribal, some religious groups, and even particular reasons, how they are discriminated against for one or more of these reasons. Okay, so how? Okay, so now today we will discuss this question, how. So student, one being discriminated against, being discriminated against. यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी समानता के लिए यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि हम कैसे जो है इनसे लड़ सकते हैं, कैसे मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, उसका सामना करने पर, ठीक है, क्या होगा जब हम उसको फेस करते हैं. सो पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. Okay, why? Why? Because to earn a livelihood, क्योंकि वो अपनी क्या है, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. ओके, so however certain kinds of work are valued more than others. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसको दूसरे के कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर. ओके, ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जैसे क्लीनिंग करने का, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, ठीक है, कूड़ा उठाने वाले जो होते हैं, तो कूड़ा उठाते हैं, जो गार्बेज को उठाते हैं, तो ये सब ऐसे कुछ काम है, अच्छे कुछ टास्क हैं जिनको लेस वैल्यू दिया जाता है, और जो लोग इस तरह के कामों को करते हैं उनको क्या समझा जाता है, डर्टी और इम्प्योर. So this belief is an important aspect of the caste system. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर मेन जो आता है कास्ट सिस्टम, दिस कास्ट सिस्टम. ओके, सो कास्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर. मेन एस्पेक्ट, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कास्ट सिस्टम. सो इन द कास्ट सिस्टम, क्योंकि देखिए अभी कास्ट सिस्टम जो है ये भी इकोनॉमी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन लाता है. So in the caste system, communities or group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the others. ठीक है, so those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior, and the groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. A student, जैसे फॉर एग्जाम्पल से ये इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक स्टेयर है, दिस वन. ओके, ये स्टेयर है. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है, ये जो कास्ट सिस्टम है, इस कास्ट सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर एक कम्युनिटी को हम ले लें या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लें, but placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the others. तो यहाँ पर इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि एक तरीके से ये एक ना लेडर के रूप में इनको रखा जाता है, इन कम्युनिटीज को, इन ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसमें क्या होता है कि जो इस स्टेयर के सबसे ऊपर वाले इस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं ये, ठीक है, ये अपने को सुपीरियर मानते हैं, और जो यहाँ पर नीचे वाली इसमें आते हैं, तो ये आपके किस में आएंगे, इनको ये मानते हैं अनटचेबल, इंफीरियर.
ओके, इनको इंफीरियर मानते हैं, इनको अनटचेबल मानते हैं, इनको अपने से नीचा मानते हैं, लोअर लोअर कास्ट में डालते हैं, और अपने को वो जो इस लेडर के सबसे ऊपर टॉप पर बैठे होते हैं, टॉप पर समझते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ओके, सो दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लेडर, जो अपने आप को इस लेडर के ऊपर सबसे उस लेडर पर टॉप पर अपने आप को रखते हैं, कॉल देमसेल्व्स अपर कास्ट, वो अपने आप को क्या कहते हैं, अपर कास्ट के। ओके, उच्च उच्च का उच्च कहते हैं ना कि जाति के जो है, तो अपर कास्ट के, एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर, और अपने आप को वो सुपीरियर मानते हैं। एंड द ग्रुप्स हु वर प्लेस एट द बॉटम, और वो ग्रुप जो इसमें बॉटम पर होते हैं, इस लेडर पर, मान लो सबसे नीचे बॉटम है, इस पर इसमें होते हैं, ऑफ द लेडर, आर सीन एज अनवर्दी, इज सीन एज अनवर्दी, अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल। ठीक है, तो उनको उनको वो अनटचेबल यानी कि उनको नीचे, बिल्कुल निचले स्तर पर उनको रखा जाता है, और उनको उनको क्या माना जाता है, बिल्कुल अयोग्य माना जाता है और अछूत माना जाता है। ठीक है, सो कास्ट रूल्स वर सेट विच डिडंट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू वर्क ऑन अ टू वर्क ऑन टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, कास्ट रूल्स पहले से ही, कास्ट रूल जो है वो सेट कर लिए गए थे। ठीक है, पहले से ही सेट कर लिए गए थे, विच डिडंट अलाउ, जो कि क्या अलाउ नहीं करते, ये जो कास्ट रूल पहले से ही सेट कर लिए गए, ये क्या अलाउ नहीं करते हैं कि सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू। यानी जो वर्क उन लोगों को, जो उन अनटचेबल्स को जो वर्क दिया गया है काम करने के लिए, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकते, तो उनको कोई परमिशन नहीं है और कोई काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the villages. Okay, कुछ ग्रुप को ये काम दिया गया कि गार्बेज को पिक करना, और जो डेड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को रिमूव करना विलेजेस से, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स। लेकिन अब वो देखो, वो उस उन विलेजेस में से गार्बेज को पिक करने का काम भी उन्हीं का है, कोई डेड एनिमल्स है उनको रिमूव करने का काम भी उन विलेजेस से उन्हीं का है, लेकिन उनको उस विलेज में जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं, जो अपने को अपर कास्ट का मानते हैं, उनके घरों में ना तो उनको एंटर करने की परमिशन है, ना ही उनको वहां के विलेज वेल से वाटर लेने की परमिशन थी, और ना ही उनको उनके टेम्पल्स में, मंदिरों में एंटर करने की परमिशन थी। So their children couldn't sit next to children of other caste in the school. इवन कि जो उनके चिल्ड्रन होते थे, बच्चे होते थे, उनको भी उनको स्कूल में जो दूसरे कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ बैठने की भी परमिशन नहीं थी। So student, you yes, look at this picture. In this picture, these two students, ठीक है, these two students are from untouchable, ओके, यानी कि इन लोअर कास्ट, फ्रॉम द लोअर कास्ट, एंड दीज आर फ्रॉम द अपर कास्ट। ठीक है, ये उनके जो उनके बनाए हुए जो रूल्स हैं, कास्ट रूल बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या था कि ये जो देखो दो टू स्टूडेंट्स हैं, ये दो ये यहाँ पर इनके साथ नहीं बैठे हैं, बिल्कुल अलग, बिल्कुल बाहर अलग होकर बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स कि इनको स्कूल में उन स्टूडेंट्स के साथ बैठने की भी परमिशन नहीं थी। सो दस upper caste acted in ways which do not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. So upper caste जो उनको अपर कास्ट को राइट मिले हुए थे, जिनको वो एंजॉय करते थे, उन सभी राइट से इन अनटचेबल को, जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे, वो इन सब से क्या थे, वो उन सबको वो एंजॉय नहीं कर पाते थे, या वो उनको वो राइट हासिल करने का अधिकार नहीं था। Yes, students, look at this picture. You know very well who. Yes, ये कौन है? सबको पता है ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. तो स्टूडेंट, पीछे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग एक बड़े ही फेमस एक लीडर के बारे में, हमारे इंडिया के एक ग्रेटेस्ट लीडर हैं, उनकी एक लाइफ से जुड़ी हुई एक घटना को हम पढ़ेंगे, जहां से हमें ये चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए हम वही पढ़ रहे हैं, किनके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हैं ये। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने अपना क्या किया? इन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने, विच टुक प्लेस इन 1901, जो कि किस टाइम का है? किस टाइम का ये एक्सपीरियंस है? उनका 1901 का। ओके, 1901 का। when he was just 9 years old, जब वो केवल 9 ईयर के थे। so he had gone with his brothers and cousins to meet his father in Karogaon, which is now in Maharashtra. अब वो क्या थे? जब ये 9 ईयर के थे तो वो महाराष्ट्र में कोरेगांव था, उसमें अपने कजन्स और अपने ब्रदर के साथ अपने फादर से वो मिलने गए। ओके, महाराष्ट्र के जो अभी महाराष्ट्र है उसमें कैरो गांव में उनके फादर थे, अपने फादर से मिलने के लिए वो अपने ब्रदर्स एंड कजन्स के साथ गए। देन long did we wait but no one turned up. अब वही कहते हैं कि हमने बड़ी देर वेट की पर वहां पर कोई नहीं आया। An hours elapsed and the station master came to inquiry. अब क्या था कि अब वहां पर पूरा 1 घंटा बीत गया था, ठीक है। एंड स्टेशन मास्टर हमारे पास पूछने के लिए आया। He asked us for our tickets. उसने पहले हमसे हमारी टिकट के बारे में पूछा। He showed them to him. We showed them to him. हमने अपनी टिकट उनको दिखाई। And he asked us why we tarried. तो उसने जो टिकट मास्टर था उन्होंने पूछा कि why we tarried, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं। So we told him that we were bound for Karogaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Karogaon. तो जब जो टिकट मास्टर था वो उनसे पूछता है तो वो कहते कि हमने उनको बताया कि हमें कैरोगांव जाना था और हम अपने फादर या उनके सर्वेंट के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कैरोगांव कैसे पहुंचते हैं, ये हमें नहीं पता। So we were well dressed children. We were well dressed children. हम well dressed children थे. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. कहते हैं हमारे जो हम वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन थे तो हमारे ड्रेस को देखते हुए या हम जिस तरीके से हम बात करते हैं बोलते हैं तो हमारे टॉक को देखते हुए कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल, कि हम अनटचेबल्स से हम जो है बच्चे हैं। सो इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर we were Brahman children and was extremely touched at plight in which he found us. अब क्योंकि जब हमारा पहनावा और हमारी बोली ऐसी थी, इवन की जो स्टेशन मास्टर था शायद उसको भी ऐसा लगा कि हम कोई ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी जो मुश्किल थी उसको देखकर बड़े परेशान हुए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज, जैसा कि हिंदूज में होता है। द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा हु वी आर, हम कौन हैं, हम कौन थे, उसने पूछा स्टेशन मास्टर ने से। विदाउट अ मूवमेंट थॉट आई ब्लर्टेड, कहते मैंने बिना कोई देरी किए और मैंने बोल दिया, आई ब्लर्टेड, मैंने एकदम से बोल दिया, निकाल दिया
कि blurted out that we were Mahars, कि हम महार्स थे. So Mahar क्या थे? Mahar is one of the communities which were treated as untouchable in the Bombay Presidency. महार उस टाइम पर एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल के रूप में ट्रीट किया जाता था. So he was stunned. He was stunned and his face underwent a sudden change. कहते कि वो एकदम से स्टन रह गया और उसका जो फेस था वो क्या था? हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज. और उसके फेस पर ना एकदम से क्या आ गए? एकदम से चेंजेस आ गए, अचानक से चेंज हुआ उनके फेस पर. एंड we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. कहते और अब हमने ना देख लिया था एक अजीब सी क्या थी? रिपल्सन मतलब घृणा की जो भावना होती है ना, वो उन पर हावी हो गई थी. ये हम देख चुके थे. So as soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. कहते कि और जैसे ही उसने मेरा आंसर सुना वो वहां से चले गए, अपने रूम में वापस चले गए. एंड वी स्टूड, हम वहां वहीं खड़े रहे वेयर वी वर, जहां हम थे. एंड 15 to 20 मिनट्स elapsed. जब 15 to 20 मिनट्स बीत गए, सो द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग. सन जो था वो छुप गया था. आवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप. मेरे फादर अभी तक भी नहीं आए थे. नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, ना ही उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा था. एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड आल्सो लेफ्ट अस. अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर हमें वहां से चले गए थे. सो वी वर क्वाइट bewildered. And the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. कहते अब हम काफी घबराए हुए थे और जो जर्नी के स्टार्टिंग में जो एक हैप्पीनेस और एक जो क्रेज जो था ना, एक हैप्पीनेस थी, क्रेज जो एक जॉय जो फीलिंग हमारे में थी, उसकी जगह अब किसने ले ली थी? एक बहुत ज्यादा एक उदासी ने, एक सैडनेस ने वो स्थान ले लिया था. So now after half an hour of the station master returned. स्टेशन मास्टर वापस आए and asked us what we proposed to do. So we said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to the Cairo and if it was not very far, we would like to start straight way. तो अब हाफ एन आवर के बाद स्टेशन मास्टर वापस लौट कर आए और पूछा कि हम क्या करने को सोच रहे हैं. तो हमने कहा कि अगर हमें मतलब रेंट पर कोई एक किराए पर एक बैलगाड़ी, एक बुलोक कार्ट मिल जाता है तो हम कैरो गांव जा सकते थे. लेकिन कैरो गांव अगर ज्यादा दूर नहीं है तो हम एकदम से पैदल ही निकलना चाहते थे. ओके, बट देयर वर मैनी बुलोक कार्ट्स playing for hire, but my reply to the station master that we were Mahar had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demand himself carrying passengers of the untouchable classes. अब वो कहते हैं कि क्योंकि अब क्या था कि मैंने जब स्टेशन मास्टर को रिप्लाई करा कि हम मार हैं, तो वहां पर जो सभी के सभी जो आसपास बहुत सारे बुलो कार्स वहां पर खड़े थे, ठीक है, हायर करने के लिए, जो हमें आसानी से ले जा सकते थे कैरो गांव. लेकिन जब मैंने स्टेशन मास्टर को रिप्लाई किया कि हम मार थे, तो उन्होंने ये जो ये मैंने बोला कि हम मार है, तो ये इंफॉर्मेशन चारों तरफ फैल गई. यानी सबको पता था कि हम महार हैं, सभी कार्टमैन को. और कोई भी हमें क्या नहीं करना चाहता, हमें अपने साथ ले जाकर अपने सफर को पोल्यूटेड नहीं करना चाहता. तो इसीलिए भाई क्योंकि हम अनटचेबल क्लासेस से हैं.
So we were prepared to pay double the fare, but the found that money didn't work. कहते इवन कि हम डबल पे करने को तैयार थे, लेकिन शायद मनी भी यहाँ काम नहीं करती, मनी ने भी कोई काम नहीं किया. And the station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. इवन जो लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि सॉरी, कहते स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए ये गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. ओके स्टूडेंट्स, then after that we studied about this. So yes students, so now time is over. So tomorrow we will discuss this topic. Okay, so that's all for today. Have a